Okay, I hope you all are good and keep watching the videos to gain more and more knowledge. Today, we'll be discussing one important topic in your state board, that Maharashtra state board. This is chapter number 6 called as refraction of light. Very important to understand the topic. Don't by heart or just rote learn the answers. This will not help you. What will help you is understanding, because these chapters are there for 11th, 12th science. If you go at, you opt science in the future. So don't ignore it and don't take it lightly. Understand what it means. So let's start. Now, to start this, let's just first understand some basic knowledge. If suppose you have about what is reflection of light. What is reflection of light? Actually, reflection of light, I'll tell you what it is. It's, let's say I have a plane mirror here and this is my incident ray. If this is my incident ray, then this becomes my point of incidence. So let's say B, this is my A. So A and B is my incident ray, B is the point of incidence. Let's say at this point of incidence, if I draw a perpendicular, let's say this is my perpendicular, this is called as normal or a perpendicular to the surface. Then this becomes my angle of incidence, this particular angle. So if I name this as N, ABN is my angle of incidence. Reflection also takes place at the same angle. So this angle will turn into angle of reflection and this ray will be called as reflected ray. This is what the basic knowledge you have learned. Now, try to understand the difference between reflection and refraction. It's very important. Don't take it lightly. They both have huge difference. The meaning is very different and the concept is also very different. Now, let's look at this part. This is my incident ray and this is reflected ray. This is glass. So let's say that this ray is in a medium. Do you know what's the meaning of medium? No? Okay. I'll tell you. Basically, there are three mediums what we use in our term. Medium is like solid, liquid, and gases. In solid, liquid, and these gases, solid medium we always talk about a transparent medium which is called as glass. Transparent जिसमें से आर पार दिखता है. लिक्विड के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली वाटर एंड गैसेस के लिए वी टेक एयर. हमारे पास तीन मीडियम होता है. ये तीनों का अलग अलग नेचर है. दे हैव डिफरेंट नेचर. What different in the nature, that will come to the later part. Let's first understand in this particular case. ये केस के अंदर ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, अगर ये एयर मीडियम में है, सपोज एयर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी मेरा एयर मीडियम में ही होगा. एयर मीडियम. अगर ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों भी कोई दूसरा मीडियम में है, लेट्स से वाटर में है, तो ये दोनों भी वाटर में ही होंगे. करेक्ट है. Now, this phenomena in which my incident ray and my reflected ray, they both are in the same medium, that's air. Such a phenomena is called as reflection. इसको reflection बोलते हैं. Reflection. Refraction इससे हटके होता है. What is the basic differences? ये दोनों में भी medium different होता है. That means incident ray के लिए एक medium होगा, refracted ray के लिए अलग मीडियम होगा. That's major difference between reflection and refraction. If you have understood this, then I'll explain you in basic what solid, liquid and gases will be used here. So if you look into this part, ये तो reflection था. So you are aware of reflection, correct? Now let's see what is refraction is all about. So आई होप रिफ्लेक्शन तुम्हारा बेसिक नॉलेज क्लियर होगा. नहीं क्लियर होगा तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नॉलेज क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. टर्म रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में होता क्या है? वी नीड एनी ऑफ दीज टू मीडियम्स फॉर रिफ्रैक्शन. सिंपल एग्जांपल बताता हूं.
Let's say I have water here and there is an air over here. So partition है, नीचे पानी है, this is water and the air above it. Normally ये देखने कब मिलता है पता है, जैसे क्या there is a fish inside the water and you are observing from outside. होता क्या है, if this is my incident ray, ये incident ray होता है, ये normal हो जाएगा which will be perpendicular to the surface. Then this ray, if this is my AB, which is my incident ray, this angle will turn into angle of incidence. Now the ray in this medium will not travel straight but will bend towards the normal. ये normal की तरफ थोड़ा सा ऐसा bend हो जाएगा. We will learn why it bends. So ये angle of reflection हो गया और ये BC मेरा refracted ray हो गया. Refract अब क्या होता है देखो, ये फिनोमेना के अंदर if this is my incident ray, my refracted ray अपने ओरिजिनल पाथ से रास्ता बदल देती है. That means actually it's supposed to be going like this, जैसे हमारे नॉर्मल मेथड में होता है, बट वो ऐसा नहीं जा रही है, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है. सो अब वो बेंड इसलिए होती है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द मीडियम. मीडियम चेंज हो गया. देखो एयर से रे वाटर में जा रही है, जब रे एयर से वाटर में जा रही है सो इसलिए वो बेंड हो गई. क्यों बेंड होती है? बिकॉज दो मीडियम अलग अलग है यहाँ पे. अब ये दो मीडियम अलग है तो उनसे इसका क्या रिलेशन है बेंडिंग का, ये सीखते हैं. देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस करके तीन मीडियम है. तो जब हम ग्लास की बात करते हैं ना, इफ आई एम टॉकिंग विद रिगार्ड टू ग्लास, ग्लास के अंदर अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑप्टिकली हम लोग इनको बोलते हैं कि ये इसके अंदर की जो पार्टिकल्स है वो इतने क्लोज होते हैं, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर. लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा, क्योंकि ये तीनों भी मैटर है, तो मैटर के अंदर देखिए कैसा होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन. दे विल बी समवॉट फर्दर अपार्ट लाइक दिस. ये थोड़े थोड़े दूर रहेंगे, बराबर, ये पार्टिकल्स. लेकिन जब तुम गैसेस की बात करोगे तो गैसेस के अंदर पार्टिकल्स ऑलमोस्ट बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं. सो एक्चुअली इतना इन लोगों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होता है कि इतना गैप होता है इन लोगों के बीच में. नाउ अब ये तीन मीडियम्स के तीन डिफरेंट एग्जांपल्स है. यहाँ ग्लास ले लिया, लिक्विड में हम लोग वाटर डिस्कस करते हैं नॉर्मली, और गैसेस के अंदर हम लोग एयर डिस्कस करते हैं. तो ये सॉलिड का एग्जांपल हो गया हमारा. नाउ ऑप्टिकली डेंसर मीनिंग ये समझना बहुत जरूरी है. ऑप्टिकली डेंसर, पहले ये समझेंगे कि ये डेंसर का मीनिंग क्या होता है. डेंस का मीनिंग होता है भरा हुआ. You might have heard in the geography, densely populated region. Densely मतलब भरा हुआ, overcrowded. उसी तरीके से यहाँ पार्टिकल्स जो है ग्लास के अंदर ये overcrowded है, भरे हुए हैं. लिक्विड में थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं. अब इसकी वजह से ऐसा होता है कि इसके अंदर, सॉलिड के अंदर, जब भी कोई रे ट्रैवल करती है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल ये रे ट्रैवल कर रही है, तो इस रे को ट्रैवल करने के लिए अंदर की जो पार्टिकल्स है वो इसकी स्पीड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं. यहां पर इसकी स्पीड को कम रोकेंगे बिकॉज पार्टिकल्स देखो दूर दूर है, और यहां पर तो एक्चुअली नहीं के बराबर रे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे वो लोग. समझ में आ रहा है? जिसके वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट की वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम रहती है. यहां पर स्पीड इससे थोड़ी ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा स्पीड यहां पर होती है. तो गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शंस कम है. यहां पर स्पीड थोड़ी कम होती है और ग्लास के अंदर स्पीड सबसे कम होती है. इसी के वजह से ये बेंड होता है. और दिस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ अ लाइट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग होता है अ रे ऑफ अ लाइट. ये रे ऑफ अ लाइट है, देखो ये एयर में है, इसका पाथ चेंज हो गया. कैन यू सी? इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, इसका पाथ का मतलब होता है रास्ता. क्या बदल गया इसका? इसका रास्ता बदल गया. आई मीन रास्ता हो सकता है या रास्ता, आई एम सॉरी. सो path of a ray of a light has changed, but कब चेंज हुआ? When it is traveling from one transparent medium, देखो ये मेरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर, टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. देख लो ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. When a ray of a light is traveling from one transparent medium to another transparent medium, the path of the ray of a light is changed.
इस रे का पाथ चेंज हो गया, और ये पूरे फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखिए, लेकिन पहले अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट गो अहेड। सो अगर मैं स्पीड, या फिर इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं वेलोसिटी, ओके, इफ आई से दैट वेलोसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। सो वेलोसिटी ऑफ एयर जो है इसमें सबसे ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, और फिर उसके बाद सबसे कम वेलोसिटी ग्लास में होती है। वेलोसिटी मींस स्पीड। अब ये भी एक जरूरी है चीज जानना कि ये वेलोसिटी अगर कम होती है तो कैसे क्या आगे इफेक्ट करता है इसके पाथ को, ये सिर्फ क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना यहाँ पे कि हमारा डेंसर का मीनिंग क्या होता है। अब ये तीनों के अंदर आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा डेंस कौन है हमारा, ये है, उसके बाद ये है इसको। सो मेन रीजन ये है यहां समझने का कि जब हम कंपेयर करते हैं दो मीडियम को, तो एक मीडियम डेंसर होती है और दूसरी मीडियम रेयर होती है। सो डेंसर और रेयर मीडियम को कैसे पहचानेंगे ये देख लीजिए। ओके, तो शॉर्ट में बताता हूं कि डेंसर और रेयर मीडियम को कैसे पहचानना है। देखो अभी हम ये एग्जांपल देख रहे थे ग्लास का लिक्विड, आई मीन लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसमें ये सॉलिड मेरा ग्लास था, ये वाटर और ये एयर, ठीक है। अब नाउ लेट्स चेक दिस, सी ये ग्लास, वाटर एंड एयर, इन तीनों के अंदर अगर मैं दो के बीच में कंपेयर करूं, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ अ ग्लास, मैं ऐसा लिखता हूं अभी एब्रिविएशन, वेलोसिटी ऑफ अ ग्लास और ये वेलोसिटी ऑफ अ वाटर है, बराबर। नाउ किस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो, या अगर ऐसा सोचते हैं कि वेलोसिटी से रिलेटेड बात नहीं करते हैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको बता दूं, ग्लास में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स नजदीक है, वाटर में थोड़े दूर है। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का, तो इसमें डेंसर ये मीडियम हो जाएगा ग्लास, और ये हो जाएगा रेयर। किन दोनों के बीच में, ग्लास और वाटर। अब वाटर और एयर के बीच में कंपेयर करते हैं, तो जब वाटर और एयर के बीच में कंपेयर करेंगे तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े नजदीक है, एयर में तो बहुत ज्यादा दूर है, तो सबसे ज्यादा इस ये डेंसर हो गया अभी इन दोनों के बीच में, और ये हो गया रेयर। सो डेंसर और रेयर। अब हम बात करते हैं ग्लास की और एयर की। ग्लास और एयर, ग्लास के अंदर तो पार्टिकल्स देखिए कितने नजदीक है, तो ये डेंसर हो गया हमारा, सो ये हो गया डेंसर, और तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली रेयर। सो इसी तरीके से डेंसर और रेयर मीडियम का कोई फिक्स नहीं होता है कि ग्लास मेरा डेंसर हो गया और वाटर रेयर हो गया। देखिए वाटर अब डेंसर हो गया और एयर बन गया रेयर। जब कंपैरिजन होता है ना दो मीडियम के बीच में, तब हम डिसाइड करते हैं क्या कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझ में आएगा आगे पूरे चैप्टर के अंदर तालमटोल हो जाएगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ नाउ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे चलता है। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। बाय देन स्टडी हार्ड, डोंट गिव अप। डिफिकल्ट नहीं है, चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है, ये सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है। हम सोचते हैं कि ये कैसा है क्या है, बट आई नो यू आर मच स्मार्टर देन मी, और मुझसे अच्छा कुछ कर सकते हो आप लोग। करना है, अगर मैं ये सिखा सकता हूं तो आप भी आगे जाके नॉलेज जमा करके सिखाइए, शेयर द नॉलेज। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अब हम सीखेंगे कि डेंसर और रेयर के अंदर रेज कैसे बेंड होती है। ओके, सो लेट्स टेक वन सच एग्जांपल। यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ओके, नाउ इन तीनों एग्जांपल के अंदर हम लोग सीखेंगे क्या, लेट्स से ये हो गया मेरा एयर और ये हो गया ग्लास। यहाँ पे ये है मेरा ग्लास और ये है वाटर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वाटर और ये ले लेते हैं एयर। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए अभी।
एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं मीडियम 1 और इसको मीडियम 2, इसको भी लेते हैं मीडियम 1 मीडियम 2, ये 1 और ये 2 मीडियम। अब समझ में आ गया है? ओके, मीडियम 1 और मीडियम 2। नाउ लेट्स से दैट एयर में से रे ट्रैवल कर रही है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब एयर से ग्लास में जा रही है, रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या होगा, ग्लास में पार्टिकल्स थोड़े नजदीक है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। सो रे कहां से ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर, डेंस में जा रही है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। स्पीड कम हो रही है ना, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, स्पीड बढ़ती है तो नॉर्मल की तरफ से दूर जाती है। ठीक है, लेट्स चेक दिस नाउ, इन नॉर्मल बना लेता हूं पहली, दिस इज माय इंसिडेंट रे, बराबर है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये ग्लास है और वाटर है। अब बताओ ग्लास और वाटर में कौन डेंसर है कौन रेयर है? यस, आई कैन हियर दैट, नाइस। ग्लास और इसके अंदर ये ग्लास मेरा डेंसर मीडियम हो जाएगा और वाटर हो जाएगा रेयर मीडियम। अब देखिए मेरा रे जो है ये कहां से ट्रेवल कर रहा है, ग्लास टू वाटर, डेंसर टू रेयर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगा क्योंकि ये वाटर में जाते ही सर इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये ऐसा नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गुड, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा ट्रिक, हमेशा सेम नहीं, लेट्स से अब मैं ये रे ऐसा लेता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, वाटर और एयर में देखते हैं कौन डेंसर है कौन रेयर है, वाटर और एयर, बोलो 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 बोलो, नाइस, आई कैन हियर दैट, वाटर डेंसर और एयर रेयर। अब रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, स्पीड बढ़ना चाहिए तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं बेंड होगी, ये अवे बेंड हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? देख लो किस तरीके से रे बेंड हो रहा है, कोई नॉर्मल की तरफ हो रहा है, कोई नॉर्मल से अवे हो रहा है। नॉर्मल मतलब बताया था परपेंडिकुलर एट द सरफेस। सो बाय हार्ट नहीं करना है, रोट लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या रे बेंड का जो कॉन्सेप्ट होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता है और वेलोसिटी किसकी कहां पे ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम देखो वेलोसिटी ऑफ एयर, velocity of the light in air is more than velocity of the light in glass। इसको एब्रिविएशन फॉर्म में ऐसा लिखते, देखो velocity of the air and velocity of the glass। अब यहां चेक करते, देखो इन दोनों के अंदर velocity of water, velocity of the light in the water will be more than the velocity of the light in the glass। अब यहां देखिए velocity of air, that means velocity of the light in air is more than the velocity of the light in the water। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। इसमें ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। इमेजिन इसको उल्टा करते हैं, इसको ये ले लेते हैं और इसको ये, दैट मींस मीडियम 1 ये मीडियम 2 ये, देखिए जैसे ये किया, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग जाता है यहां पर। अगर एक और चीज देखेंगे तो ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां पर एक और चीज पता चलती है क्या, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये कम होता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। देखो ऐसा भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, देखो, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एप्लीकेशन क्वेश्चंस आता है, देखो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चंस जब आते हैं ना ऐसा घुमा फिरा के, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शोइंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ड्रॉ करना है, ये या फिर ये इसके कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है तो अभी हमको एक रे डायग्राम सीखना पड़ेगा, और रे डायग्राम है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रे डायग्राम सीखते हैं।
पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्लास स्लैब होता क्या है। देखो कोई भी ऐसा चीज जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड या क्यूबॉइड के जैसा है और जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लास, ग्लास से बनी हुई चीज है। जैसे अभी एक एग्जांपल मोबाइल ही ले लो, तो ये मोबाइल भी एक्चुअली देखा जाए ये पूरा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बन जाएगा। ओके, सो अगर ऐसा ही एक ग्लास स्लैब में फ्रंट व्यू का ड्रॉ कर रहा हूं, फ्रंट व्यू मतलब ऐसा सामने से जो दिखेगा वो ड्रॉ करता हूं। ओके, सो लेट्स से ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ओके, नाउ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो ये तो हमारा ग्लास मटेरियल हो गया, ये एयर है और ये भी एयर है। अब ये रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये देख लीजिए। एक काम करते हैं, पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ओके, अब पूरा कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एरो दिखाना जरूरी है, एरो मिसिंग है रॉन्ग हो जाएगा। सो ये एयर, अब देखो रे एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो जाएगा, तो ये ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कहां तक, जहां तक ये ग्लास का एज है, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये पहला फंडा, पहला कॉन्सेप्ट। रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। सो डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम हो गई, तो ऐसा डायग्राम बन गया, बराबर है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। देन आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस एंड, यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। जब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब देखिए ये जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये अभी यहां से बाहर निकल रही है, तो जो रे बाहर निकलती है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। सो यहाँ इमर्जेंट रे आएगी। अब वो देखिए ये रे जो आने वाली है, ये रे कहां पर है, अभी ये डेंसर में है, और एयर इसको कंपेयर करेंगे तो रेयर हो गया। सो अब रे कहां से ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंस से तो रेयर, मतलब इसकी स्पीड बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करेगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगी कि ये एक्चुअली इसको पैरेलल जाएगी, इसको पैरेलल जाना चाहिए। सो ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ये हो गया इमर्जेंट रे, दिस इज माय इमर्जेंट रे। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ ये दो का कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन गया ना, क्योंकि ये इसको पैरेलल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये आर है तो ये भी आर हो गया। सो दिस इज एंगल आर, तो ये भी एंगल आर ही हो गया, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। So this is the diagram which you need to know for rectangular glass slab। लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, जो अभी सीखा था वही सब अप्लाई किया। बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ये फंडा है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस हम लोग लॉज लिख लेते हैं। ओके, लॉज मतलब जो कानून बनाया है इन लोगों ने, वो कानून लिख देते हैं। अब वो कानून ऐसा है, देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज दिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोट लर्निंग नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये लॉ दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब इसी डायग्राम को अगर हम देखेंगे, क्योंकि कानून है, लॉ है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सब जगह ट्रू होना चाहिए। तो देखो अब यहां पर कैसे ट्रू होगा, यही लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ये दोनों भी नॉर्मल के ऑपोजिट साइड पे होगी। देखो एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है, देख लिया। वही सेम लॉ यहां पर भी देखो, भले ही अब ये पार्ट के लिए अगर ये मेरा इंसिडेंट लेता हूं सपोज, तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड होता है सपोज, तो दोनों देखो ऑपोजिट साइड पे, ये नॉर्मल के एक ये साइड पे, ये डायग्राम ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा डायग्राम आपने ड्रॉ किया तो रॉन्ग हो गया। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है,
और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, रॉन्ग हो गया ये तो, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी नॉर्मल की एक ही साइड पे, विच इज रॉन्ग। लॉ है ये तो, कानून है, तोड़ थोड़ी सकते हो आप, लॉ है, कानून है, सेम फॉलो होगा, ठीक है। सो माय इंसिडेंट रे, माय रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इसी को कंटिन्यू करके लिखा हुआ है एंड, दूसरे में बाद में आते हैं एंड इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, फिर से वही है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही आएगा, सिर्फ लिखना है लाई इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, ये बोर्ड अभी इन तीनों के लिए एक प्लेन है, स्ट्रेट पेपर प्लेन। सो देखो कैसा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। देखो तीनों भी एक ही पेपर के अंदर आ रहे हैं, दैट मींस एक ही बोर्ड के अंदर है। अगर ये ऐसा होता, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसा नहीं जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है आपके तरफ, तो इसका मतलब उसने अपना ये पेज छोड़ के बाहर आ गया, विच इज नॉट ट्रू। इसलिए फर्स्ट लॉ के लिए ये दो कंडीशन जरूरी है। इसी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो ये बोलता है, अभी हमारे यहाँ पे एक पेयर ऑफ अ मीडियम है, देखो फॉर अ पेयर ऑफ अ मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम ही होता है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं इसको, और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया। अब यहाँ पे ये पोर्शन में कौन से दो पेयर है, देखो एयर और ग्लास, क्या है, एयर और ग्लास है। तो ये पेयर ऑफ मीडिया के लिए फॉर्मूला ऐसा आता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always equals to constant, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रेशियो, इसको क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रेशियो। सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always equals to constant and that constant is called as refractive index। और पेयर ऑफ मीडिया यहाँ पे कौन सा है, एयर और ग्लास, और अगर यहां से यहां देखेंगे तो पेयर ऑफ मीडिया क्या हो जाएगा, ग्लास टू एयर। सो ये सेकेंड लॉ है, ये दोनों कानून को तोड़ना नहीं है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए जाते हैं।